কপনিৰ সৃষ্টি কৰিছে আনন্দ মিশ্ৰই ইজনৰ পাছত সিজন ড্ৰাগছ মাফিয়াই এতিয়া এৰিছে ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায় এতিয়া ড্ৰাগছ সেৱন কৰিবলৈও এৰিছে বহু যুৱকে আনন্দ মিশ্ৰৰ লখিমপুৰত কিদৰে ড্ৰাগছ এৰিছে ড্ৰাগছ মাফিয়াই আমি জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ড্ৰাগছ আসক্ত খাইৰুলে কিদৰে এৰিলে ড্ৰাগছ আসক্ত খাইৰুলে এতিয়া ড্ৰাগছ এৰিলে 9 বছৰ ধৰি ড্ৰাগছ সেৱন কৰি আহিছিল খাইৰুলে 9 বছৰ ধৰি ড্ৰাগছ সেৱন কৰি আহিছিল লখিমপুৰৰ এনেকুৱা এখন সমাজত তেওঁ বাস কৰিছিল য'ত ঘৰে ঘৰে ড্ৰাগছ পোৱা যায় ড্ৰাগছ অবিহনে মই খাব খুব পৰা নাছিলো খাইৰুলে মন্তব্য আগবঢ়াইছে ড্ৰাগছ অবিহনে মই খাব খুব পৰা নাছিলো মোৰ মা দেউতা মৰি গৈছিল কিন্তু মই ড্ৰাগছ এৰিব পৰা নাছিলো পুৱা শুই উঠাৰ পৰা নিশা শুৱা পৰ্যন্ত মই ড্ৰাগছ লৈছিলো খাইৰুলৰ মন্তব্য 9 বছৰ তেওঁ ড্ৰাগছ সেৱন কৰিছে কিন্তু মই নিচা মুক্তি কেন্দ্ৰত গৈ ভয়ংকৰ ড্ৰাগছৰ পৰা মুক্ত হলো মই নিচা মুক্তি কেন্দ্ৰলৈ গলো আৰু ড্ৰাগছৰ পৰা মুক্ত হলো 9 বছৰ ধৰি ড্ৰাগছ সেৱন কৰি অহা খাইৰুল ইছলামে পালে নতুন জীৱন নিচা মুক্তি কেন্দ্ৰৰ পৰা ওলাই আহি খাইৰুল ইছলামে বৰ্ণনা কৰিলে অন্ধকাৰ জগতৰ বহু কাহিনী ড্ৰাগছ আসক্ত খাইৰুলে কিদৰে এৰিলে ড্ৰাগছ লখিমপুৰত ড্ৰাগছৰ অবাধ প্ৰচলন আছিল যেতিয়াই আনন্দ মিশ্ৰ লখিমপুৰলৈ গ'ল তাৰ পাছত কপনিৰ সৃষ্টি হ'ল ড্ৰাগছৰ কোলা সাম্ৰাজ্য বহু ড্ৰাগছ মাফিয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে ঘৰে ঘৰে গৈ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে আনন্দ মিশ্ৰই আৰু তাৰ পাছতেই ক্ৰমাৎ কমি আহিল ড্ৰাগছৰ প্ৰচলন ড্ৰাগছৰ কোলা বেহা খাইৰুল ইছলাম 9 বছৰ ধৰি খাইৰুলে ড্ৰাগছ সেৱন কৰিছিল আৰু এতিয়া খাইৰুল ড্ৰাগছৰ কবলৰ পৰা মুক্ত হৈছে খাইৰুলে এতিয়া নতুন জীৱন লাভ কৰিছে খাইৰুলে বৰ্ণনা কৰিছে গোটেই কোলা অধ্যায়টো খাইৰুলে বৰ্ণনা কৰিছে কিদৰে ড্ৰাগছ সেৱন কৰিছিল কিদৰে ড্ৰাগছৰ বাবেই ড্ৰাগছ সেৱন কৰাৰ বাবেই খাইৰুলে ড্ৰাগছ সেৱন কৰাৰ বাবেই দুখতে পিতৃ মাতৃৰ বিয়োগ হৈছিল সকলো বৰ্ণনা কৰিছে আৰু নতুন জীৱন লাভ কৰিছে নতুন জীৱনৰ ফালে গতি কৰিছে খাইৰুল ইছলাম নিচা মুক্তি কেন্দ্ৰলৈ গ'ল খাইৰুল আৰু নিচা মুক্তি কেন্দ্ৰতেই তেওঁ এটা নতুন জীৱন লাভ কৰিলে পুনৰ পুখা মেলিলে খাইৰুলৰ এৰি অহা সপোনবোৰে আমি জনাইছো 9 বছৰ ড্ৰাগছে খাই আছিল খাইৰুলক ড্ৰাগছক খাইৰুলে কোৱা নাছিল খাইৰুলক খাইছিল ড্ৰাগছে লখিমপুৰৰ যিখন সমাজত খাইৰুল বাস কৰিছিল সেই সমাজখনত দিনে নিশাই কেৱল মাত্ৰ ড্ৰাগছৰ প্ৰচলন আৰু সেই গোটেই ব্যৱস্থাটোৰ পৰা খাইৰুল এতিয়া মুক্ত খাইৰুল ওলাই আহিছে 9 বছৰৰ আগতে যিবোৰ সপোন খাইৰুলে এৰি আহিছিল সেই সপোনবোৰ বিচাৰি খাইৰুল এতিয়া আগবাঢ়ি গৈছে নতুন জীৱন লাভ কৰিছে খাইৰুলে এইজন হৈছে খাইৰুল ইছলাম কেমেৰাৰ সন্মুখত সকলো বৰ্ণনা কৰিছে কিদৰে ড্ৰাগছ সেৱন কৰিছিল কিদৰে তেওঁ আত্মীয়ক হেৰুৱাইছিল কিদৰে সকলোবোৰ সপোন তেওঁ হেৰুৱাই পেলাইছিল কিদৰে নতুন জীৱন তেওঁ লাভ কৰিলে সকলো বৰ্ণনা কৰিছে এইজনেই হৈছে খাইৰুল ইছলাম আৰু ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীৰ ঘাটিত কপনিৰ সৃষ্টি কৰিছে আনন্দ মিশ্ৰ বাহিনীয়ে আনন্দ মিশ্ৰই অলিয়ে গলিয়ে গৈ ড্ৰাগছ আসক্তসকলক ধৰিছে ড্ৰাগছৰ বেপাৰীক ধৰিছে मेरा घर बंदरदुआ में है और मेरा नाम खैरुल हुसैन है हम 9 इयर्स कंज्यूम किया है ड्रग्स ऐसा एक सोसाइटी में था कि हर घर पे हर एक जगह पे ड्रग्स मिलता था तो आज उसका साथ से निकल के आया जो पहले का प्रोग्राम लेने वाला था रिहेबिलिटेशन सेंटर में ट्रीटमेंट लिया है उस लोग ही हमको निकला है हमें कुआं में फंसा हुआ था ना तो उस लोग हाथ बढ़ाया है मेरा तरफ आओ भाई हम लोग ठीक हुआ है तुम भी ठीक हो सकता है हम तो उम्मीद छोड़ चुका था जो हम कभी ठीक हो पाएगा ये चीज़ से कभी दूर हो पाएगा बोल के ठीक बिना ड्रग्स का ना सोच पाता था ना खा पाता था ना सो पाता था कुछ भी हो हमको ड्रग्स चाहिए था घर पे माँ मर गया बाप मर गया हमको मतलब नहीं है हमको ड्रग्स चाहिए था सुबह उठने का साथ साथ और सोने का पहले ड्रग्स हमको इतना तक ये कर लिया था तो पापा को पता चला रिहेबिलिटेशन सेंटर है घर का जो दोस्त लोग पहले ट्रीटमेंट लिया था उस लोग पापा को बोला है तो ऐसा करके हम लोग ठीक हुआ है आपका बेटा को दीजिए वो भी ठीक होगा तो हमको दिया है हम हारमोती में ट्रीटमेंट लिया है हारमोती सेंटर में ट्रीटमेंट लिया है 6 मंथ बैठा है तो आज हम ठीक है और पब्लिक को यही बोलना चाहता है हम समाज को कि जो लड़का ड्रग्स एक एडिक्ट हो जाता है वो लड़का कभी ख़राब नहीं होता है उसको ख़राब करवाता है ड्रग्स तो वो लड़का अपना नॉर्मल लाइफ में वापस आना चाहेगा आ पाएगा जब उसका फैमिली उसको सपोर्ट करे आज लड़का ड्रग्स पी दिया है ख़राब है बोल के छोड़ देने से वो लड़का और ख़राब हो जाएगा तो उसका तरफ यही है कि फैमिली उसको सपोर्ट करना पड़ेगा रिहेबिलिटेशन सेंटर है सिर्फ ये बंगल मारा नहीं और भी बहुत जगह पे है जो जहाँ सकता है
वहाँ कोशिश करके रिहेबिलिटेशन सेंटर पे देना है। और एक ड्रग एडिक्ट जब नॉर्मल पे आएगा उसका फैमिली बहुत अच्छा चलेगा, तो उन लोग से कम दुआ मिलेगा। फैसिलिटी इसमें जब फर्स्ट डिटॉक्सिफिकेशन होगा तो उसमें 11 to 10 डेज मेडिसिन चलता है, उसके बाद में एक क्लास सिस्टम होता है। तो उस क्लास सिस्टम में जाने के बाद हमको जैसा मिला है हम वैसे ही बोलेगा, क्लास सिस्टम जाता है तब जो विड्रॉल सिम्टम्स का जो मेडिसिन होता है उसे रोक दिया जाता है। तो उसका अलग कुछ प्रॉब्लम होता है जैसे पेट दर्द, फीवर, बुखार, माथा दर्द, तो उस हिसाब से डॉक्टर आके दवाई लिख के प्रेस्क्रिप्शन पे देता है, उस हिसाब से खिलाया जाता है। उसके बाद जब क्लास में होता है तो योगा होता है, नॉर्मल योगा, उसके बाद इनपुट होता है, आउटपुट होता है, लाइव का जो शेयरिंग क्लास होता है वो होता है, और कुछ इन्वेंट्री होता है जो हम क्या क्या गलती किया था नहीं किया था उस तरह का इन्वेंट्री होता है। दिन के अंदर में रिहेब हो जाएगा? आपका फिजिकली जो है ये तो ट्रीटमेंट टू 4 to 6 मंथ का है, लेकिन 90 डेज क्या या 1 to 2 डेज में फिजिकल रिकवर हो जाता है। उसका 2 महीने टाइम एक्स्ट्रा लगता है, वो फैमिली बैठा भी सकता है नहीं भी बैठा सकता है, क्योंकि देखिए फिजिकल तो ठीक हो जाएगा, हम लोग का मेडिसिन हो कुछ भी करके फिजिकल ठीक कर लेगा। हमको ठीक करना है मेरा मेंटेलिटी। अगर मेंटेलिटी में ड्रग्स रहेगा, हमको दुनिया का कोई भी कोना में छोड़ देगा तो हम ड्रग्स ढूंढ के लेके आएगा। हम खुद ऐसा था, हम 9 ईयर्स कंज्यूम किया है ड्रग्स यहीं पे, तो ये चीज़ हमको पता है कि हम काफ़ी बार मेडिकल ट्रीटमेंट करके भी छोड़ चुका है। ये समीउल अख्तर का जो चैम्बर है हम लोग डॉक्टर साहब का, वहाँ में भी हम काफ़ी बार ट्रीटमेंट लिया है, डिब्रूगढ़ पे लिया है, लेकिन हम कभी छोड़ नहीं पाया था। जब तक मेरे पास मेडिसिन था तब तक ही हम सिर्फ गैप में बैठा है, मेडिसिन खत्म दोबारा हम ड्रग्स का पास गया है। तो ये मेंटली हम लोग का सफा करने के लिए एक ही जरिया है, वो रिहेब सेंटर। और ये रिहेब सेंटर से एक दो बोल के नहीं, हज़ारों लाखों एक ड्रग एडिक्ट आज क्लीन है, सिर्फ ड्रग्स से दूर नहीं, कोई भी नशा नहीं कर सकता है। और रिहेब में सिर्फ नशा के लिए नहीं आता है ना, तो एवरी उसका हैबिट एंड बिहेवियर सब कुछ चेंज किया जाता है। बस पब्लिक यही है, हर कोई सपोर्ट कीजिएगा एक लड़का को ये करने के लिए, रिहेबिलिटेशन सेंटर तक पहुंचाने का। मेरा घर बंदरदुआ में है और मेरा नाम खैरुल हुसैन है। हम 9 ईयर्स कंज्यूम किया है ड्रग्स। ऐसा एक सोसाइटी में था कि हर घर पे हर एक जगह पे ड्रग्स मिलता था, तो आज उसका साथ से निकल के आया। जो पहले का प्रोग्राम लेने वाला था रिहेबिलिटेशन सेंटर में ट्रीटमेंट लिया है, उस लोग ही हमको निकला है। हमें कुआं में फंसा हुआ था ना, तो उस लोग हाथ बढ़ाया है मेरा तरफ, आओ भाई हम लोग ठीक हुआ है, तुम भी ठीक हो सकता है। हम तो उम्मीद छोड़ चुका था जो हम कभी ठीक हो पाएगा, ये चीज़ से कभी दूर हो पाएगा बोल के। ठीक बिना ड्रग्स का ना सोच पाता था, ना खा पाता था, ना सो पाता था। कुछ भी हो हमको ड्रग्स चाहिए ही था। घर पे माँ मर गया, बाप मर गया, हमको मतलब नहीं है, हमको ड्रग्स चाहिए था। सुबह उठने का साथ साथ और सोने का पहले ड्रग्स हमको इतना तक ये कर लिया था। तो पापा को पता चला रिहेबिलिटेशन सेंटर है, घर का जो दोस्त लोग पहले ट्रीटमेंट लिया था उस लोग पापा को बोला है, तो ऐसा करके हम लोग ठीक हुआ है, आपका बेटा को दीजिए वो भी ठीक होगा। तो हमको दिया है, हम हारमोती भी ट्रीटमेंट लिया है, हारमोती सेंटर में ट्रीटमेंट लिया है, 6 मंथ बैठा है, तो आज हम ठीक है। और पब्लिक को यही बोलना चाहता है हम समाज को कि जो लड़का ड्रग्स एक एडिक्ट हो जाता है वो लड़का कभी ख़राब नहीं होता है, उसको ख़राब करवाता है ड्रग्स। तो वो लड़का अपना नॉर्मल लाइफ में वापस आना चाहेगा, आ पाएगा जब उसका फैमिली उसको सपोर्ट करे। आज लड़का ड्रग्स पी दिया है, ख़राब है बोल के छोड़ देने से वो लड़का और ख़राब हो जाएगा। तो उसका तरफ यही है कि फैमिली उसको सपोर्ट करना पड़ेगा। रिहेबिलिटेशन सेंटर है, सिर्फ ये बंगलमारा नहीं और भी बहुत जगह पे है, जो जहाँ सकता है वहाँ कोशिश करके रिहेबिलिटेशन सेंटर पे देना है। और एक ड्रग एडिक्ट जब नॉर्मल पे आएगा उसका फैमिली बहुत अच्छा चलेगा, तो उन लोग से कम दुआ मिलेगा। फैसिलिटी इसमें जब फर्स्ट डिटॉक्सिफिकेशन होगा तो उसमें 11 to 10 डेज मेडिसिन चलता है, उसके बाद में एक क्लास सिस्टम होता है। तो उस क्लास सिस्टम में जाने के बाद हमको जैसा मिला है हम वैसे ही बोलेगा, क्लास सिस्टम जाता है तब जो विड्रॉल सिम्टम्स का जो मेडिसिन होता है उसे रोक दिया जाता है। तो उसका अलग कुछ प्रॉब्लम होता है जैसे पेट दर्द, फीवर, बुखार, माथा दर्द, तो उस हिसाब से डॉक्टर आके दवाई लिख के प्रेस्क्रिप्शन पे देता है, उस हिसाब से खिलाया जाता है। उसके बाद जब क्लास में होता है तो योगा होता है, नॉर्मल योगा, उसके बाद इनपुट होता है, आउटपुट होता है, लाइव का जो शेयरिंग क्लास होता है वो होता है, और कुछ इन्वेंट्री होता है जो हम क्या क्या गलती किया था नहीं किया था उस तरह का इन्वेंट्री होता है। दिन के अंदर में रिहेब हो जाएगा? आपका फिजिकली जो है ये तो ट्रीटमेंट टू 4 to 6 मंथ का है, लेकिन 90 डेज क्या या 1 to 2 डेज में फिजिकल रिकवर हो जाता है। उसका 2 महीने टाइम एक्स्ट्रा लगता है, वो फैमिली बैठा भी सकता है नहीं भी बैठा सकता है, क्योंकि देखिए फिजिकल तो ठीक हो जाएगा, हम लोग का मेडिसिन हो कुछ भी करके फिजिकल ठीक कर लेगा। हमको ठीक करना है मेरा मेंटेलिटी। अगर मेंटेलिटी में ड्रग्स रहेगा, हमको दुनिया का कोई भी कोना में छोड़ देगा तो हम ड्रग्स ढूंढ के लेके आएगा। हम खुद ऐसा था, हम 9 ईयर्स कंज्यूम किया है ड्रग्स यहीं पे, तो ये चीज़ हमको पता है कि हम काफ़ी बार मेडिकल ट्रीटमेंट करके भी छोड़ चुका है। ये समीउल अख्तर का जो चैम्बर है हम लोग डॉक्टर साहब का, वहाँ में भी हम काफ़ी बार ट्रीटमेंट लिया है, डिब्रूगढ़ पे लिया है, लेकिन हम कभी छोड़ नहीं पाया था। जब तक मेरे पास मेडिसिन था तब तक ही हम सिर्फ गैप में बैठा है, मेडिसिन खत्म दोबारा हम ड्रग्स का पास गया है। तो ये मेंटली हम लोग का सफा करने के लिए एक ही जरिया है, वो रिहेब सेंटर। और ये रिहेब सेंटर से एक दो बोल के नहीं, हज़ारों लाखों एक ड्रग एडिक्ट आज क्लीन है, सिर्फ ड्रग्स से दूर नहीं, कोई भी नशा नहीं कर सकता है। और
रिहेब में सिर्फ नशा के लिए नहीं आता है ना, तो एवरी उसका हैबिट एंड बिहेवियर सब कुछ चेंज किया जाता है। बस पब्लिक से यही है, हर कोई सपोर्ट कीजिएगा।